Hello everyone. So in the last class we have already I think completed agreement in instance of the trade. In the last class we have already completed the most important part, that is agreement in instance of the trade, that is void, and we have also discussed that agreement in instance of an agreement, that is also void in nature. Okay. So after completing those two persons, today we are going to continue about the most important part, that is the agreement is void due to the uncertainty, that is discussed under section 29 of the Indian Contract Act. Okay. So when we're talking about the agreement is void due to the uncertainty of the agreement, so what do you understand by the uncertainty? Okay. You may ask me like, ma'am, what do we understand by the uncertainty? Then the answer is, when you are having certain incidents or certain kind of events which is actually uncertain in nature, right? For example, I will tell you that I may take the class at tomorrow 5 p.m. Okay. So here I am not confirming anything. I am not giving the clarification, yes, I am going to take the class at 5 p.m. only. I have used the word that is may. So there is the probability I might do that, I might not do that, right? That is my choice that I want to take the class at 5 p.m. or 6 p.m. Okay. So when we are doing or we are entering into certain kind of agreement, and at that condition you see that there is the uncertainty in the promise, or there is any kind of the uncertainty in the person's agreement, in that case that contract is called as the void contract. Okay. I am putting you an example of this. Like the let's first read out what is the section 29 speaks about. It speaks that agreement, the meaning of which is not certain or capable of being certain, is void. Okay. So it exactly speaks that when there is any kind of the agreement which is which is actually uncertain in nature, like when someone is doing certain kind of the agreement or someone is entering into certain kind of the contracts, then it is pretty clear from that contractual terms and condition, it is very clearly seen that no, this contract is not going to happen. There is certain issues with that contract. For example, I am telling you that I want to marry B. Okay. But at the time of my condition, or at the time of I am contracting this, that if I am marrying B, then I am going to get 10 lakh of the rupees. Okay. But what is happening in the consequence, it is been seen that by the time I am signing this agreement, I am unaware about the fact is B has been died at that point of time. सिंपल हिंदी में हम समझते हैं तो ये सिचुएशन ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप मुझे, इफ यू आर पेइंग मी 10 लाख ऑफ द रुपीज, अगर आप मुझे 10 लाख रुपए दे रहे हैं, देन मैं बी को शादी करने के लिए तैयार हूँ। राइट। आई एम पुटिंग ए कंडीशन ओवर हियर। बट सिचुएशन ऐसा है कि जब तक मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ, तब तक ये पिक्चर क्लियर है, बी इज नॉट अलाइव एनीमोर, सी इज डेड। राइट। सो व्हेन दिस इज द कंडीशन ओवर हियर, जहां पे मैं जिसको शादी करने के लिए यहाँ पे प्रॉमिस कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ, बाय द टाइम दैट पर्सन इज डेड, दैट पर्सन इज नॉट अलाइव इटसेल्फ. So here in this condition, this type of contract or agreement is called as a void contract, because that is the impossibility of the event is present over here. यहाँ पे जो सिचुएशन में बता रही हूँ कि मैं बी को शादी करना चाहती हूँ, या फिर विद दिस कंडीशन आई वांट टू गेट 10 लाख ऑफ द रुपीज, ये टोटली इम्पॉसिबल है. दिस इज द इम्पॉसिबल हैपनिंग ऑफ द इवेंट, क्योंकि यहाँ पे बी इज ऑलरेडी डेड बाय द टाइम आई एम डूइंग दिस एग्रीमेंट. सो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को समझे तो दिस पिक्चर इज वेरी क्लियर दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एज void इन नेचर. इसको हम void कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं. समझ में आया? आगे बात करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे आपका कोई सर्टेनिटी ना हो. ओके. और व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन द इवेंट. दूसरा सिचुएशन तभी आता है व्हेन देयर इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द इवेंट. ओके. सो व्हेन यू आर आस्किंग मी अबाउट द अनसर्टेनिटी, वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये बताती हूँ कि आई वांट टू बाय बाय द ऑयल, मेरे को तेल खरीदना है. ओके.
एंड मैं ये बोलती हूँ कि मैं जाके दुकानदार को ये बोलती हूँ कि आई वांट टू बाय 5 लीटर ऑफ द ऑयल, मेरे को 5 लीटर तेल खरीदना है, तो आई एम पेइंग यू इन रिटर्न 500 रुपीज इन रिटर्न, 500 रुपए मैं उसके बदले आपको दे रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे दुकानदार और मेरे बीच में जो कंट्रैक्ट हो रहा है, इज इट ए वैलिड कंट्रैक्ट? द आंसर इज नो, because when I am asking the shopkeeper that I want to buy 5 liter of the oil, that I am not clarifying the terms of the contract. मैं ये चीज उसको नहीं बता रही हूँ कि मैं किस तरह का तेल खरीदना चाहती हूँ. I am not clarifying that what kind of oil I want to buy over here. So here the picture is not clear in front of the shopkeeper. उसको confusion है कि मैडम ने बोल के गले गए चले गए कि उनको 5 लीटर तेल खरीदना है, बट कौन सा तेल मैं पैक करूं? What kind of oil she wants to buy? Here the shopkeeper is not clear about my intention, is not clear what I exactly wants to buy. So here, this kind of the contract or this kind of agreement is considered as void in nature. इसको contractually void माना जाएगा. Clear? समझ में आया? देन आगे बात करते हैं सेक्शन 30 की, जो कि बात करता है एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ द ओएजर इज void इन नेचर. सो ओएजिंग का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? यहाँ पे सेक्शन 30 पे जो लिखा गया है, इट हैज बीन रिटन दैट एग्रीमेंट बाय वे ऑफ ओएजर इज void and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be owned on any wager or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which the wager is made. Okay, so wagering is an illegal activity. So wagering के हिसाब से अगर हम किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, then that is also considered as illegal in nature. So what do we understand by the wagering? Wagering means जैसे कि आप किसी भी तरह के, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि वी आर पुटिंग सम काइंड ऑफ द बेटिंग लगाना. फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, सो आई एम पुटिंग एज ए बेट कि अगर इंडिया विन किया देन आई एम गोइंग टू गेन 10 लाख रुपीज, अगर इंडिया विन हार गया देन आई एम गोइंग टू लॉस 10 लाख ऑफ द रुपीज. तो दिस इज द इलीगल एक्टिविटी ऑफ द बेटिंग, जो कि जुए में होता है. आप लोगों ने जुआ का पता ही होगा आप लोगों को. एंड ऑन द मेन टाइम जुआ खेलना एंड उसी का यूटिलाइज करना या फिर उसी में बेट लगाना, दिस ऑल एक्टिविटीज हैज बीन कंसिडर्ड एज इलीगल इन इंडिया, राइट? सो यहाँ पे जो बेटिंग लगाते हैं उसको बोलते हैं द एक्टिविटी ऑफ द ओएजिंग, राइट? सो ऑन द एक्टिविटी ऑफ द ओएजिंग, अगर आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हो एंड उसी में आपको नुकसान पहुंचता है, या फिर इफ यू आर सफरिंग एनी ओए, then you cannot come to the court of law for asking for the justice कि हमको justice दो, हमें ये नहीं मिला. That is not the way. मान लीजिए you are putting an illegal agreement or you are putting your ways or bet upon something that अगर इंडिया मैच में हार जाता है देन यू आर गोइंग टू लॉस 10,000 ऑफ द रुपीज, एंड अगर इंडिया जीत जाता है देन यू आर गोइंग टू गेन 10,000 ऑफ द रुपीज. मान लीजिए कि इंडिया जीत लिया, तो यहाँ पे आपका जो ओपोनेंट पार्टी है उसको क्या करना चाहिए? उसको आपको 10 लाख रुपए देना चाहिए, राइट? बट व्हाट इज हैपनिंग, द अनदर पार्टी इज नॉट एग्रीइंग टू पे यू. वो बोल रहा है कि नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा, राइट? सो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा आता है कि आपको गुस्सा आता है कि अरे भाई उसने मेरे को बोला था कि 10,000 रुपए देगा, बट यहाँ पे मैंने बेट लगाया तो था, मैंने भी तो पैसा हारा है, बट उन्होंने मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहा? बट द पॉइंट इज, कैन यू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन दिस बेसिस? क्या आप कोर्ट में जाके ये बोल सकते हैं कि मैं इस बात का बेटिंग लगाई थी और मेरे को पैसा नहीं मिला? कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट और कोर्ट विल नॉट एंटरटेन योर पिटिशन इवेंट. कोर्ट आपका जो कंप्लेन है ना, उस कंप्लेन को एक्सेप्ट तक नहीं करेगा, बिकॉज द पिक्चर इज वेरी क्लियर. कोर्ट उसी चीज का कंप्लेन को एक्सेप्ट करती है जहां पे कोई लीगलिटी हो, जहां पे लीगल ऑथेंटिसिटी हो, जहां पे वैलिडिटी हो. जो चीज एज पर द लीगल टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूव्ड हो, रिलेटेड हो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप
जुए खेलने खेल को लेकर या फिर कोई बेटिंग को लेकर या फिर कोई क्विजिंग एक्टिविटी को लेकर कुछ एग्रीमेंट करते हैं एंड उस एग्रीमेंट को लेके कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, देन दैट एग्रीमेंट इज इटसेल्फ भॉइड इन नेचर। उस एग्रीमेंट को ही इलीगल माना जाएगा, उस एग्रीमेंट को ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। So in the court of law, your petition to accept that agreement or to gain your money on the basis of that agreement is totally void in nature. I hope you are getting my point. Got it? So coming to the next point, दूसरा चीज यहाँ पे एक एक्सेप्शन बोलता है कि दिस सेक्शन इज shall not deem to render unlawful subscription or contribution or agreement to subscribe or contribute made or entered into for or toward any plate, prize or sum of money or value of amount be rewarded to the winners or winners of the horse race. But यहाँ पे हॉर्स रेसिंग को एज एन एक्सेप्शन माना जाता है बिकॉज हॉर्स रेसिंग इज अ वेरी अनसेड गेम इन इंडिया। इसीलिए हॉर्स रेसिंग में अगर किसी भी तरह का बेट लगाया जाता है या फिर किसी भी तरह का अगर हॉर्स रेसिंग में ऐसा होता है कि किसी भी तरह का बेट लगाया जाता है या फिर इन द एक्टिविटी ऑफ द हॉर्स रेसिंग, if you are putting any kind of the prize, winning money or any kind of the things as the gift or anything, okay, so that is considered as the valid, उसी को void नहीं माना जाएगा। But horse racing को छोड़ के all kinds of the agreements which is based on the wagering nature is totally void in nature. Clear? Okay. So this is your chapter 2. Now moving towards the chapter 3, the heading of the chapter is the contingent contracts. Okay. So you can ask me that what do you understand by the contingent? Contingent means which is contractual in nature, which is contradicting in nature. That means something which is in a situation like हो भी सकता है ना भी हो सकता है, happens or does not happen. There is a two situation, like you must have read the probability, right? So in the probability हम लोगों ने ये पढ़े थे कि there is the two options always stand. One is happening of the event and another is the does not happening of the event. अगर event happen होता है then contract is getting done. अगर कॉन्ट्रैक्ट तभी नहीं होता है जब आपका इवेंट हैपन नहीं होता है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट स्पीक्स अबाउट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का चीज आता है, दोनों सिचुएशन आता है, कुछ सिचुएशन कुछ इवेंट कुछ सर्कमस्टांसेस हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, और एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दैट सर्कमस्टांसेस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है ना, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दैट सर्कमस्टांसेस। अगर वो इंसिडेंट और वो इवेंट होता है देन द कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग डन, द कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग कंप्लीटेड। एंड जहां पे वो इवेंट और सर्कमस्टांसेस नहीं हो रहा है और द इवेंट और सर्कमस्टांसेस इज नॉट हैपनिंग, इन दैट सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट हैपनिंग, the contract is not getting completed. Clear? Then when we're talking about the contingent contract, it starts from section 31 of the Indian Contract Act. Okay, so section 31 पे ये contingent contract को define किया गया है. What does it speak? A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जाता है कि अगर हम किसी के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या फिर किसी के साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट पे एंट्री करते हैं, बट उस सिचुएशन पे दैट एग्रीमेंट इज बेस्ड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, and in that case that contract is called the contingent contract in nature. I am giving you an example. मान लीजिए कि I'll be telling you that I am going to pay you 10 lakh of the rupees if you are marrying B's daughter. Okay, तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक
कंडीशन पुट कर रही हूँ कि अगर आप बी के बेटी के साथ शादी करने को मान जाते हैं, देन आई एम गोइंग टू पे यू 10 लाख ऑफ द रुपीज। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि आप बी के बेटी को शादी करेंगे तभी मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, राइट। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि बी की बेटी बीमार है, शी इज ऑलरेडी बीइंग सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, तो उसका रिकवरी का चांसेस 50-50 है। तो यहाँ पे द सिचुएशन इज नॉट क्लियर। अगर बी की बेटी का रिकवरी हो जाता है, इफ दैट गर्ल इज गेटिंग रिकवर, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू मैरी बीज डॉटर, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेन 10 लाख ऑफ द रुपीज। बट अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि जहां पे आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि बी का बेटी इज नॉट गोइंग टू स्टे अलाइव, सी इज नॉट गोइंग टू लिव एनी मोर, तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा मुझसे। सो यहाँ पे आपको पैसा मिलना एंड द कॉन्ट्रैक्ट, द अबाउट द हैपनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का होना ना होना, this is completely based upon the circumstances, the situations, जहां पे आपके सामने दूसरा एक circumstances जुड़ा हुआ है, एंड वो दूसरा सर्कमस्टांसेस का हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे आपका ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी डिपेंड कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रोमिसिंग यू दैट आई विल पे यू 20,000 रुपीज इफ योर हाउस इज बीइंग बर्न्ड। मैं आपको एक प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर आपका घर कभी भी आग में जल जाता है या फिर इफ यू आर सफरिंग ड्यू टू द हाउस बर्न, देन आई एम गोइंग टू पे यू 20,000 ऑफ द रुपीज। मान लीजिए ड्यू टू सर्टन इंसिडेंट्स और ड्यू टू सर्टन इवेंट्स योर हाउस इज बीइंग बर्न बाय द फायर, तभी you are getting to you will be eligible to get 20,000 rupees from me। बट मान लीजिए योर हाउस इज नॉट गेटिंग बर्न ड्यू टू फायर। अपना घर कौन जलाना चाहेगा, सच्ची बात है, आपका घर नहीं जला, अच्छी बात है, तभी आपको ये 20,000 रुपए का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पैसा मिलना ना मिलना आपके घर जलना और ना जलने के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज इंटरकनेक्टेड। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट दो सिचुएशन एक दूसरे के साथ टैली कर रहे होते हैं। मेरा पहला कंडीशन ये है कि आई एम गोइंग टू पे यू 20,000 रुपीज, एंड दूसरा कंडीशन ये है अगर आपका घर जल जाए तो यहाँ पे दोनों कंडीशन जो एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, अगर दूसरा कंडीशन का हैपनिंग नहीं होता है या फिर नॉन हैपनिंग नहीं होता है, देन द amount you are about to get or the nature of the contract which is about to be fulfilled, that might be completed, might not be completed. There is always 50-50 chances of the yes or no, and this kind of contract is called as the contingent contract under section 31 of the Indian Contract Act. I hope you are clear about this, okay? थोड़ा आगे बात करते हैं। अंडर सेक्शन 32 इट स्पीक्स अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स contingent on an event happening. So what does it mean? Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until the event has been happened. If the event becomes impossible, such contracts becomes void. Okay. There is this is little complicated, section 32, but this is very interesting to understand. Okay. What does it speak? We already understood contingent contract is all about the happening or non-happening of the future event. तो आपका section 32 ये बोल रहा है when there is the happening of the event, then the contract is getting completed. Yes, right. For example, we have put a condition that if you are going to gain the first class in your 10th examination, then you are going to owe a bike. I am going to buy you a bike. Okay. So यहाँ पे मान लो you have got the first position and according to the contract you are going to get a bike. Yes. मान लो there is the non-happening of the event. You could not stand for the first position. Then I am not going to give you a bike. आपको बाइक नहीं मिलेगा, right? तो यहाँ पे the happening of the future event, the nature of the contract is dependent.
ये हमने पढ़ लिया, राइट। एंड the second point speaks that if the event becomes impossible, then the such contract becomes void. जैसे कि we have discussed few time back, मैंने आपको ये बोला था that if you are marrying B's daughter, you are going to get 10 lakh of the rupees from me. अगर आप B के बेटी से शादी कर रहे हैं, then I am going to pay you 10 lakh of the rupees. बट मान लीजिए आपने उससे शादी के लिए मान गए, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, बट बिफोर द मैरिज समथिंग हैपेंड एंड बी's daughter dies, right? So here the total agreement becomes void in nature, because यहाँ पे the condition is totally based upon the marriage, जो कि अभी possible ही नहीं है, क्योंकि the person who is already dead, you cannot marry her. And in that condition, this kind of the contract or this kind of agreement is totally void in nature. Okay. The second condition we have to understand that A makes a contract with B to sell a horse at a specified price. Okay. And the horse अगर दूसरे किसी को बेचा ना जाए तो, so what does it mean? For example, आपने मेरे पास आते हैं, आप मेरे को बोलते हैं कि मैम आपके पास जो व्हाइट कलर का हर्ष है वो बहुत प्यारा है, मेरे को हर्ष चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं हर्ष दे दूंगी, बट आई विल टेक इन रिटर्न 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए मैं आपसे लूंगी। तो आपने मान गई, आपने बोले कि ठीक है, आई एग्री टू गिव यू। बट मैं वहां पे दूसरा कंडीशन पुट करती हूँ कि आपके आने से पहले ना और एक देर इज अनदर पर्सन हु हैज ऑलरेडी बुक दिस हर्ष, एंड उनका कोई सियोरिटी नहीं है, वो खरीद भी सकते हैं ना भी खरीद सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो कल तक बता देंगे। अगर वो कल तक मेरे को ये बताते हैं कि उनको ये वाला हर्ष खरीदना है, देन आई एम गोइंग टू सेल हिम, बिकॉज पहला बुकिंग उनका था, सेकेंड बुकिंग आपका है। तो अगर उन्होंने घोड़े को नहीं खरीदा, देन आई एम गोइंग टू सेल यू दिस हर्ष। तो यहाँ पे आप मान जाते हैं, ठीक है अच्छी बात है, अगर उन्होंने नहीं खरीदा तब मैं खरीदूंगी। तो यहाँ पे the contract between you and me, that you are going to buy a horse from me and I am going to sell a horse to you, that is totally based upon the circumstances upon the third person, कि वो हर्ष खरीदना चाहेंगे कि नहीं। अगर वो हर्ष खरीद लेते हैं, देन आपका चांस गया, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी बिकम्स void इन नेचर, बिकॉज यहाँ पे दूसरा इंसान हर्ष खरीद के ले गया, तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो मैं बेचू तो क्या बेचू आपको, कुछ नहीं, राइट। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर उन्होंने हर्ष खरीद के ले गए, उनका पहला बुकिंग था, देन आपका बुकिंग मैं नहीं कर सकती। आपने भी मान लिए थे, मान लीजिए दैट पर्सन बॉट द हर्ष, उन्होंने आया घोड़े को खरीद के ले गए। तो यहाँ पे आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, दैट इन द एक्सचेंज ऑफ 50,000 रुपीज आई एम गोइंग टू सेल यू द हॉर्स, और इन द एक्सचेंज ऑफ द हॉर्स यू आर गोइंग टू ऑफर मी 50,000 of the rupees. Is this contract valid anymore? Is this kind of agreement is existing anymore? The answer is no, because the agreement becomes void when there is the impossibility of the event at the place. यहाँ पे there is the impossibility of the event, the impossibility of the agreement, right? So अगर मान लीजिए that person is not buying the horse, तो यहाँ पे क्या होता है, you are coming and buying this horse. तो ऑब्वियसली ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद दैट अनदर पर्सन, जबकि उन्होंने हर्ष घोड़े नहीं खरीदा, तभी आपका लॉटरी आ गया, देन यू आर गोइंग टू बाय दिस हर्ष, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द नेचर ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ये बोलता है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्स्ड अपॉन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, upon what event or which circumstances the contractual nature of that event is being prepared with the happening or non-happening of that specific event, the contract becomes enforceable and non-enforceable in nature. Clear? Then coming to next point, section 33, it speaks that enforcement of contracts contingent on an event not happening. So this is also a very clear thing, जो कि ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। A agrees to pay B a sum of money if the certain ship does not return.
the ship is sunk, and here the contract can be enforced. That means अभी पहले अंडर सेक्शन 32 जो हमने डिस्कस किया वो बता रहा था कि enforcement of certain agreement or contingent contract when there is some happening of an event, and this section 33 speaks when there is certain non-happening of an event, then the contract is also contingent in nature. हैपनिंग ऑफ द इवेंट क्या हमने बात किया, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इससे शादी करते हैं तो मैं आपको इतना पैसा दूंगी, अगर आप घोड़ा खरीदना चाहते हैं, अगर सी ने घोड़ा नहीं खरीदा तो मैं आपको बेच दूंगी. दीज ऑल आर द हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट. यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा है. देयर इज सर्टन हैपनिंग. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन हैपनिंग, जहां पे मैं आपको बोलती हूँ कि अगर ये इंसिडेंट नहीं होता है देन आई एम गोइंग टू पे यू दिस मच, और आई एम गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट, और आई एम गोइंग टू फुलफिल दिस नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मैं आपको यहाँ पे प्रॉमिस करती हूँ, इफ द शिप इज नॉट रिटर्निंग, मान लीजिए आपका एक शिप है which is gone for the shipping for a risky work, right? आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा चांसेस है जहाँ पे शिप शायद वापस ना आ सकता है, या फिर देर इज द चांसेस ऑफ द सिंकिंग ऑफ द शिप, शिप डूब सकता है. ओके, सो यहाँ पे when there is the circumstances कि शिप डूब सकता है, then I am promising you just because you are going on my work, तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि ठीक है, अगर शिप वापस नहीं आ जाता है देन आई एम गोइंग टू पे यू 10 लाख ऑफ द रुपीज. तो यहाँ पे माई पेमेंट टू यू दैट इज द 10 लाख ऑफ द रुपीज, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द नॉन रिटर्निंग ऑफ द शिप. अगर शिप वापस नहीं आता है तभी मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी. मान लीजिए समंदर में हमारा जो शक था, द शिप हैज बीन डिलीवर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ द रिस्की वर्क एंड दैट एक्चुअली हैपेंड, द शिप इज संक. ओके, शिप डूब गया. उसके बाद क्या हुआ, द कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू इफेक्ट. मैं आपको 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस की थी एंड आई हैव टू पे, आई डोंट हैव एनी गेट अवे फ्रॉम दिस. मान लीजिए शिप वापस आ गया, आर यू एलिजिबल टू गेट 10 लाख ऑफ द रुपीज फ्रॉम मी? द आंसर इज नो. So here the contract is based upon the non-happening of the event. Non-happening of the event means शिप का वापस ना आने से आप मुझसे पैसा लेंगे. This was the nature of the contract. शिप का वापस ना आना is the non-happening of the event, non-happening of the incident. And when there is the enforcement of the non-happening of the incident, the contract becomes actually void in nature. And when the contract is itself based on the non-happening of the event, when the contract is such a nature as the contingent in nature, जहाँ पे contract में ये बोला गया कि अगर this situation is not happening, then this contract is going to be completed. Then only the contract is called as the contingent contract and the contract gets completed after the non-happening of the event. Okay. So we have discussed about section 30, section 31, 32, 33. Okay. सेक्शन 31 के अंडर हमने पढ़ा कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम किसको बोलते हैं. सेक्शन 32 में हमने पढ़ा द हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट व्हेन इट मेक्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये इंसिडेंट होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा. अगर बारिश होता है तभी मैं आपको 100 रुपया दूंगी, बारिश होने से ही आपको 100 रुपया मिलेगा. देयर इज द कंडीशन फॉर हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट. एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोली, अगर आपका शिप वापस नहीं आता है तभी मैं आपको 10,000 रुपया दूंगी. एंड दिस इज कंप्लीटली अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जहां पे ये बोला जाता है कि अगर ये इंसिडेंट नहीं होता है देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द मनी, राइट. So section 32 speaks about the contingent contract, which speaks about the happening of the contract due to the happening of certain events or certain agreements or certain contractual conditions.
And section 33 speaks about the non-happening of certain events which makes the contract valid or implicable in nature. Clear? So from section 34 onwards, we are going to continue in the next class, and we are going to meet at the next class of the Hindu law in next 10 minutes. Thank you so much. Wrapping up the class over here, and if you have any kind of doubt, you can just ask me in the next class. Thank you.